Hi, good evening, everyone. Thank you, Nirja aunty. Young, dynamic, to bol diya, but standing next to dad, I don't think that really even counts because that's the young, dynamic one. We are still growing up, we are still learning from him. So, everybody, thank you, everyone, for coming in for the launch of this very special book that's so close to dad's heart, but also something that's very close to all of us. I've enjoyed reading this book, but before we get into bringing the man himself to talk to us about it, let me just rewind and talk to you about the journey that he's had so far. So आप सभी लोगों ने अभी तक उनने क्या किया है, lot about the book तो सुन ही लिया होगा, but I think some of us are here to also hear about what he's gone through, where all of these reflections have come from. So let me just take a few minutes and walk you through that, and I'm sure there's a lot to learn about him from this as well. So Dad, Dr. Sanjay Ranwal, is a renowned business strategist, humanologist, mentor, researcher, educator, orator, and an author. He has extensive professional experience in the fields of retail, real estate, hospitality, besides being actively engaged in the fields of consulting, training, and mentoring. Dad started his career as a retailer in 1983, very interestingly, from the historic town of Vijaypura in Karnataka. He later moved to Pune in 1994 and was part of the real estate and hospitality industry for over 2.5 decades. His real estate company, Runwal Housing and Townships Private Limited, was amongst the early recipients of foreign direct investment in the country. After a successful business career of almost 32 years at the age of 55, Dad chose to exit from his business activities and decided to dedicate the rest of his life towards returning back to the business fraternity through his 5 E attributes: experience, exposure, expertise, education, and excellence, and also to the society through his 3 W attributes: wealth, wisdom, and warmth. After closing his construction business, he founded his consulting strategy and mentoring company, Strategic Business Solutions. His expertise spans across multiple sectors like real estate, engineering, hospitality, auto components, chemicals, pharmacy, healthcare, and the service sector. His work has positively impacted numerous businesses and individuals, earning him recognition as a trusted advisor and a mentor. He offers pro bono guidance as a mentor to young entrepreneurs and individuals seeking structured business growth. His approach emphasizes the importance of strategic thinking, leadership, and planning. Dad, as you all know, is also an author in the field of strategic management. His first book, Demystifying Strategy Implementation, a roadmap for putting strategy to action, is based on 6 intellectual properties created by him in the field of strategic management. And his second book, titled The Strategy Handbook for Self-Owned Businesses, is a ready reckoner for the owners of small and medium businesses. Dad is also a much sought-after speaker, addressing diverse audiences on topics such as strategic management and business transformation. He's also a very popular speaker in the field of humanology and speaks on his favorite topics, as you all know, on SBOP living, doing good in life, and transforming life after 55-60. Through his writings and talks, he has been trying to help people beyond the age of 55-60 to lead a purposeful and a meaningful life. His book, How to Live Life SBOP Living for Life After 55-60, is an outcome of his own experiences, learnings, and lessons in life after retiring from his flourishing business at the age of 55. This book has hailed as a practical guide for life after 50 and has won the coveted Golden Book Award 2025, which within 3 months of its publication has done exceedingly well. Has done exceedingly well in India, besides sales in the UK, US, and Germany. The book has also been translated in Marathi, and as Nirja aunty already mentioned, the Hindi edition of the book will be released
at the Global Happiness Forum in Jaipur in September 2025. Dad has over the past few years dedicated himself to pro bono work by focusing on giving back to the society. In line with this thought, all the proceeds of his books are marked for charitable causes. Dad is also the founder of the Sanjay Runwal Foundation, which is engaged in various activities of serving the needy and less fortunate in the society. He is a firm believer that a small intent can make a large difference in the world. Dad is an electrical engineer from MNIT Jaipur. He has an MSc in Strategic Planning and postgraduate certificate in Business Research Methods from the Edinburgh Business School. He also has a postdoctoral senior fellow in the field of business strategy for his work of strategy implementation, and also has a postgraduate diploma in alternate dispute resolution methods. I'm sure you all saw a smile on my face while I was reading this, because I knew I cannot get this wrong, and there's so much to talk about that it's inspiring just to even speak about it. Dad is an avid traveler and generally travels for 12 days after every 45 days of a stay in Pune. So as you can tell, we miss him and we miss Mom a lot because they love traveling. He's also a poet and writes poetry in Hindi under the Takallus Kavi Sanjay Bijapuri. He's also an amateur cricket commentator and commentates both in Hindi and English. So anybody wanting to hear commentary, please come home. You know where to join us when there's a cricket match. You're all almost welcome every time it's there. He's going to be sitting right over there commentating for all of you. And on a personal note, like somebody already mentioned, he's always been supported by our wonderful mother, Pratibha Runwal. He's been our most inspiring coach and always celebrated all of our small and big wins. Priyanka and I, as his daughters, have always been so inspired to see the kind of social bonds, knowledge, wealth and wisdom that Dad has been able to create over all these years. And thankfully, because of this book, Thoughtful Reflections for a Meaningful Life, we now have a full-time guide to get us maybe a little closer to what he is today. Definitely not to what he is today, but for sure a little closer to what he is today. So thank you so much, Dad, for bringing this to all of us. And I'll bring back Neerja Auntie on stage and open the floor for him to talk about all the different facets of the book and walk you through it now. So thank you so much and have a good evening. Thank you. Thank you, dear Sarika, for this wonderful introduction of Dr. Sanjay Runwal. चलिए अब मैं अपनी जगह थोड़ी सी बदल लेती हूँ, क्योंकि शायद आप थोड़ा बोर तो हो ही गए होंगे मुझे बार बार यहाँ देखकर, तो कुछ थोड़ी सी जगह बदलने से शायद कुछ लहजा भी बदल सकता है और कुछ बातें और अच्छी तरह से आप तक पहुँच सकती हैं। तो अभी कुछ देर के लिए मैं यहाँ पर डॉक्टर संजय रुनवाल के पास बैठकर उनसे कुछ बातें करूँगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको भी मज़ा आएगा उस बातचीत में और बहुत सारी बातें आप जान सकेंगे। तो चलिए हम मिलते हैं हमारे मित्र डॉक्टर संजय रुनवाल से। तो नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत। और डॉक्टर संजय रुनवाल, मैं डॉक्टर संजय रुनवाल को तो नहीं लेकिन संजय जी को पिछले 1.5 दशक से ज़्यादा समय से जानती हूँ, है ना संजय जी? बिल्कुल सही। और जितनी बार मिली हूँ, जितनी बार बात की है, उतनी बार अलग अलग चीज़ें इनकी पर्सनालिटी की मुझे बहुत अच्छी लगी हैं। एक बेहद उम्दा इंसान जिनके लिए एक शेर अर्ज़ करना चाहती हूँ, सुनेंगे? इरशाद, क्या बात है कि कहते हैं कि इत्र से कपड़ों को महकाना तो कोई बात नहीं, इत्र से कपड़ों को महकाना तो कोई बात नहीं, मज़ा तो तब है जब तेरे किरदार से खुशबू आए, मज़ा तो तब है जब तेरे किरदार से खुशबू आए, और ये खुशबू
संजय जी के किरदार में मुझे हमेशा मिली है। और इस खुशबू से जो भी उनसे मिलता है बस सराबोर हो जाता है, महक जाता है। और इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो ये आपका महकता किरदार आज आपकी पहचान बन चुका है। आपको सबसे पहले तो बधाई देना चाहती हूँ इसलिए। आज जिस किताब का प्रकाशन हुआ है, थॉटफुल रिफ्लेक्शंस ऑफ अ मीनिंगफुल लाइफ, ये आपने अपने पिताजी अमृत जी रुनवाल को समर्पित की है, तो इस बारे में कुछ बताएं। सबसे पहले सबको मेरा प्रणाम, मेरे वंदन। नीरजा जी कहूँ या जी गुस्ताखी मत कहिए। अगर गुस्ताखी कर लूँ और केवल नीरजा कहूँ। नीरजा ही कहें। बिल्कुल। तो नीरजा हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा कहते हैं ना, आपके पीछे एक चट्टान होती है जी। जो आपको, आपके जीवन को, आपकी सोच को एक ऐसी मजबूती देती है, एक आपको बेहतर इंसान बनाती है, आपके चरित्र को एक नया आयाम देती है। आपके अंदर के जो अपने तत्व हैं, गुण हैं, उसको निखारती है। और इन सब को अगर देखूं तो एक व्यक्ति मेरे जीवन में ऐसे थे, पिता थे, गुरु थे, मित्र थे, पर मैं डरता भी बहुत था। पर उनकी अच्छाइयाँ इतनी थी कि एक समय ऐसा आया था जब जीवन में मैं बहुत निराश हो गया था। बहुत बचपन की बात है, आप सोच सकते हैं, करीबन 8-1 साल की मेरी उम्र होगी, 7-8 साल। और इतनी निराशा से मैं जब भर गया था, तब मेरे छोटे से एक मन में कई विचार आए थे। एक क्षण जिंदगी में ऐसा आया था कि उस क्षण में मैं कहीं इस पार या उस पार चला जाता। उस पार शायद बहुत ही खतरनाक होता, पर ये ऐसे इंसान थे जिनकी तस्वीर यहाँ है। ऐसे इंसान हैं जिन्होंने, वो साइकोलॉजी के स्टूडेंट तो नहीं थे, पर उन्होंने मेरी साइकोलॉजी उस वक्त पढ़ ली। और जिस तरह से उन्होंने उस वक्त के बाद मेरे जिंदगी को मोड़ा, आज जो कुछ मैं यहाँ बन के बैठा हुआ हूँ, केवल और केवल मात्र उन्हीं के बदौलत है। और मेरी किताब में मैं 2 चीज़ें पढ़ना चाहूँगा, अगर आप इजाज़त दें तो। इस किताब के पन्ना नंबर 403 और 404 पे मैंने कुछ लिखा है, और वो बिल्कुल पढ़ के मैं सुनाऊंगा। A father's wisdom and my journey. It's on page number 403. Growing up in Vijayapura, Bijapur then, in the later half of the 60s, it was my father who taught me the true value of reading. He never hesitated to spend extra on books, recognizing the wealth of knowledge and imagination they bring. From fiction to history, biographies to mythology, he showed me that books are treasures that nourish the mind and soul. I consider myself truly fortunate to have had a father who understood that knowledge paves the way for growth. तालियां खुल के हों। His guidance ignited my lifelong romance with books, a passion that has now blossomed into me becoming an author. Every page I have read has shaped who I am today. Remember,
The key to a rich life lies in cultivating a love for learning, just like my father. There's one more thought that I have dedicated to my father, and I want to read it here. The power of faith and dedication, my father's legacy. I grew up as a shy and introvert child, struggling with every subject in primary school. Every subject in primary school. Often keeping my rank intact, which was last. उस रैंक में कोई अदल बदल नहीं होता था, हेर फेर भी नहीं होता था, क्योंकि इनवेरिएबली वो मेरे लिए ही बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो रिजर्व करके रखा हुआ था. But it was my father's unwavering faith and conviction that changed my course. He believed in my potential when I couldn't see it myself. Playing the roles of a father, teacher, and a friend all at one time. His dedication and vision turned my failures into stepping stones for success. Thanks to him, I learned that believing in oneself and having faith in others can transform destinies. I owe who I am today to this great man, Amrutlal Runwal, my late father, my guiding light. His belief ignited the fire of resilience within me, shaping the journey of whatever small, little achievements in my life. So that's about my father, Nirja. वंडरफुल. और मुझे ये लगता है कि अगर ऐसे पेरेंट्स हों, ऐसे पिता हों, जो बच्चे की उंगली थाम कर उसे ज़िंदगी के सफ़र में आगे ले जाएं, तो क्यों ना हो संजय जी जैसा बेटा जो आज उनका नाम भी रोशन कर रहा है और आगे आने वाली पीढ़ियों को भी मार्गदर्शन दे रहे हैं. क्या बात है, बहुत खूब. संजय जी, मैं आपसे पहली बार जब मिली थी तब आप एक बेहद सफल बिल्डर थे और मैंने वो दौर जो एक बहुत ही अलग सा दौर था वो देखा है आपका. और उसके बाद ह्यूमनोलॉजिस्ट, बिजनेस स्ट्रैटेजी पर लिखने वाले देश के चुनिंदा लोगों में से एक संजय जी, और अब SBOP, थॉटफुल रिफ्लेक्शंस, इन किताबों के लेखक. ये तब से लेकर अब तक का ये अद्भुत ट्रांसफॉर्मेशन मैंने देखा है. मैं साक्षी हूँ संजय जी के इन अलग अलग रोल्स जब वो उसमें एंटर हुए और उसे निभाते रहे, तो जब जब भी मिली हूँ तब तब मुझे ये एक अलग रूप नज़र आया. तो सभी जानना चाहते हैं मेरे ही साथ कि ये कैसे हुआ. शुरुआत इस बात से करना चाहूँगा नीरजा कि 32-33 साल माँ लक्ष्मी की मैंने बहुत क्या कहें, ईमानदारी से सेवा की है. पर आपको मैं एक बात बहुत खुले दिल से कहता हूँ कि जब मैं माँ लक्ष्मी की साधना कर रहा था तब मेरे दोनों हाथ माँ सरस्वती के चरणों में थे. तो शायद लंबा जवाब न देते हुए अगर इसको छोटा सा एक जवाब मैं आपको दे दूं, तो कभी कभी मुझे भी ये लगता था कि कहीं कुछ गलत जगह पे मैं तो नहीं हूं. पर इस बात का जवाब भी मुझे मिला है और इस बात का जवाब मैंने इस किताब में भी लिखा है. जिंदगी का पहला पहलू होता है जब आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए काम करते हैं. फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए काम करना ये मेरी जिम्मेदारी थी, अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी थी और आगे चलते हुए समाज के प्रति भी जिम्मेदारी थी. पर ये दौर
मैंने तय कर रखा था कि 55 में इसको मैं ख़त्म करूँगा। ये निर्णय अगर आप जानना चाहें तो मैंने मेरे स्वर्गवासी पिताजी से काम छोड़ने के 25 साल पहले कहा था। कभी कभी इंजीनियरिंग का मैं विद्यार्थी हूँ। मेरे ही सीनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के मेरे सीनियर कालाजी बैठे हुए हैं, मेरे अपने कज़िन नितिन बैठे हुए हैं, उसी कॉलेज से वो भी आते हैं, जिस कॉलेज से हम दोनों आते हैं उसी कॉलेज से नितिन भी आते हैं। कभी कभी नीरजा मुझे ऐसा लगता था कि साइंस में कहीं मैं गलत तो नहीं आ गया था। पर बाद में जब मैंने सोचा, मैंने कहा ये इंटरवल के पहले वाला जो काम था उसमें मुझे आवश्यकता थी साइंस की, जिसने मेरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की पूरी ज़रूरतें पूरी कर दी। और उसके बाद माँ सरस्वती, जिनके चरणों में मेरे हमेशा दोनों हाथ रहते हैं, उसमें अब मुझे पता चला कि मुझ में कॉग्निटिव और क्रिएटिव, ये आर्ट से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा है। और कहीं ना कहीं इंसान को अपने अंदर की जो चीज़ है, जो आपकी इनर कॉलिंग्स है, जिसको आप आशा ने शायद उस बात को कहा था, योर इनर कॉलिंग्स, तो वो समझने की आशा मैंने भी कोशिश की। 55 में क्यों, ये शायद सवाल था। मेरी नानी कहती थी काम इस तरह से करो कि आगे दौड़ना हो तो घुटनों में कुछ ग्रीस तो बाकी हो। घुटनों का ग्रीस खत्म होने के बाद अगर नई इनिंग्स शुरू करना चाहोगे तो आपके पास समय भी नहीं होगा, शक्ति भी नहीं होगी। तो मेरे नानी का मैं बड़ा प्यारा और दुलारा था, तो उनका हमेशा मैं बहुत इंसान ये भूल जाता है, वो बस में चढ़ता है पहले स्टॉप पे और उसका आखिरी स्टॉप आता ही नहीं। जब ये चीज़ हो जाती है तो आपके जो और आयाम होते हैं ज़िंदगी के, देखिए इस देश में एक छोटी सी विडंबना है, आप सभी अपने हैं तो साझा कर रहा हूँ। इस देश की जीडीपी बढ़ाने के लिए ही मैं पैदा हुआ हूँ, ये हर किसी का मानना है। भाई जीडीपी बढ़ाने के अलावा भी और कुछ चीज़ें हैं, बिल्कुल। तो वो कब करेंगे? मेरे एक कजिन है, उनका नाम नहीं लूंगा, वो कहते हैं जीडीपी बढ़ाने के साथ साथ भी ये काम हो सकता है। हाँ, ये हो सकता है, ऐसा हमें भी लगता है। हो सकता है, पर इसमें ऐसा है कि आपको किसी चीज़ की पूरी शालीनता से, तल्लीनता से, शिद्दत से आपको अगर वो चीज़ करनी है तो अपने यहाँ एक व्यवस्था बताई गई है कि जिसमें एक चीज़ एक समय ख़त्म होती है और अगली चीज़ शुरू होती है। तो मैंने कहीं उस बात को अपने दिल से लिया है। SBOP लिविंग में भी मैंने वो बात कही है। मेरे एक मित्र यहाँ बैठे हैं, उनका भी मैं नाम नहीं लूँगा, वो भी कई बार मुझसे पूछते हैं कि भाई ऐसे क्यों। मैंने कहा थोड़ा सा वैदिक परंपरा के अंदर झांक के देखना पड़ेगा, जहाँ हमने इन व्यवस्थाओं की बात करी है, जहाँ हम गृहस्थ आश्रम के बाद वानप्रस्थ आश्रम की बात करते हैं, एक राजस भरी जिंदगी के बाद हम सत्व की जिंदगी की बात करते हैं। तो ये कुछ पहलू है, मैं इसमें बहुत आगे नहीं जाऊंगा। पर जब मैंने सोचा कि अब काम बंद करना है, जैसे आपने कहा आप बड़ी ऑफिस में आए थे, बिल्कुल। अब मेरे पास कोई बड़ी ऑफिस नहीं है, अभी का ऑफिस भी मैं देख चुकी हूँ, क्योंकि अब ऑफिस कम बोलती है, इंसान ज़्यादा बोलता है। बिल्कुल। देखिए एक बात ऐसी है नीरजा कि काला जी ने एक बात कही थी, रिटायर, रीवायर एंड रीफायर। रिटायर का अर्थ बिल्कुल ये नहीं है कि काम काज छोड़ दो, घर बैठो, टीवी देखो, रिमोट का चैनल लो, इसको बदलो उसको बदलो। मेरा मानना ये है कि एक अध्याय पूरा हुआ है, दूसरा सुवर्ण अध्याय आपके सामने खुला हुआ है, और उस सुवर्ण अध्याय को अगर आपको पूरी शिद्दत से जीना हो तो आपको रिटायर के बाद रीवायर होना पड़ेगा
तभी आप रीफायर कर पाएंगे। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। इस बात को जब मैंने समझा, ये शब्द मेरे पास उस वक्त नहीं थे नीरजा, मैं समझ रहा था पर शब्दों में नहीं उसको ढाल पा रहा था। मेरी छोटी बेटी जो सारा मेरे बारे में कह गई, उसने कहा कि उन्होंने ये पढ़ाई की, वो की। ये रीवायरिंग था। करेक्ट। क्योंकि ये रीवायरिंग मैं नहीं करता तो आने वाले समय में रीफायरिंग नहीं करता। बिल्कुल सच। तो इंसान को ये समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं आपको अपने आप में वो चीज़ें आपको उजागर करनी पड़ेंगी, आपके भीतर वो जगानी पड़ेंगी। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, समाज अपना बैलेंस शीट देखता है और फाइनेंशियल बैलेंस शीट देखता है। इंसान को तोलने के लिए एक और बैलेंस शीट होती है, उसके कार्यों की बैलेंस शीट। बिल्कुल। अगर उस बैलेंस शीट की तरफ समाज देखने लग जाए तो शायद ये जीडीपी वाला चक्कर दिमाग से हट जाएगा। सही है। इसी बात को कहते हुए इस प्रश्न को यहाँ बिल्कुल पूर्ण विराम दे देते हैं। बिल्कुल। थैंक यू। आपने कहा भी है, जिसका जिक्र भी हुआ था कि डू गुड इन लाइफ, उसी की बात आपने की कि अच्छे काम करते रहिए और बस खुश रहिए, मस्त रहिए। लेकिन कहना बहुत आसान है। इतना बड़ा बिजनेस जो बहुत ही शानदार तरीके से चल रहा था, और ख़ासकर हमारे भारतीय समाज के संदर्भ में अगर हम देखें तो लोग इसे कुछ पागलपन कहते हैं कि इसे छोड़ देना या उसे बंद करना ऐसे समय जब वो बिल्कुल ऊंचाई पर हो, तो कठिनाइयाँ आई होंगी, चैलेंजेस आए होंगे, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। क्योंकि क्या होता है, लोग सोचते तो हैं कि चलिए संजय जी जैसा कुछ करते हैं, लेकिन जब वैसा करने की कोशिश शुरू होती है उस वक्त जो परेशानियाँ आती हैं उनसे कैसे पार जाएं, ये भी आपको ही बताना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप बहुत चैरिटेबल हैं कि आपने कहा कुछ पागलपन है। मुझ में तो यहाँ कई लोग पूरा पागलपन देखते हैं। तो आपने तो बहुत मृदुभाषी अंदाज में कहा कि इनमें थोड़ा पागलपन है। मैं खुद भी मानता हूँ, इंसान को अगर कुछ हट के करना हो तो उसमें पागलपन होना बिल्कुल ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी बात। इस जुनून के बगैर, इस पागलपन के बगैर ये नहीं होता है नीरजा, मैं आपको बताता हूँ। वरना ये सब आप नहीं छोड़ पाएंगे। इसके लिए वो जुनून, वो पागलपन कहीं ना कहीं से आता है। और अगर आप समाज में बैठे हैं तो वहाँ से आना थोड़ा मुश्किल है, फिर वो आपके अपने भीतर से आपको उसको जागरूक करना पड़ेगा। अब आपने कहा कि इसमें चैलेंजेस आए हैं क्या? सच कहूँ या? सच ही कहना है, क्योंकि सारे लोग आपको जानते हैं। नहीं, सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में नीरजा नहीं होती है। और अगर आप सही सुनना चाहती हैं तो फिर सही सुनिए। देखिए, 10 सालों का दौर बहुत कठिन था, मुश्किल था, क्योंकि समाज भीतर का अपना परिवार, अपना वर्ग, मित्र वर्ग ये जानने की कोशिश करता था कि भाई तू करता क्या है। उस दौर में मेरे लिए सबसे मुश्किल सवाल था, मिस्टर रुनवाल व्हाट डू यू डू? बिल्कुल। और इसका क्या जवाब दूं? तो अगर वर्क इन प्रोग्रेस है तो उनको तो वो दिखाई नहीं पड़ेगा। तो मैंने एक तय कर लिया था कि इस वक्त मैं निवृत्त हूं, मैं इतना ही जवाब देता था। आई एम रिटायर्ड। कम से कम आगे के सवाल तो नहीं पूछेंगे। तो यहाँ बात रुक जाएगी। हाँ। फिर लोग कहते थे तेरा समय कैसे जाता है? जवाब बड़े एक के बाद एक आते थे। और कईयों का लगता था कि भाई रिटायरमेंट मतलब बैठ गया है घर में। पॉपकॉर्न खाओ, बीवी से कहो चाय दो, रिमोट कंट्रोल बीवी के हाथ में नहीं अपने हाथ में लो, ऊपर से नीचे सारे चेंज करो।
और बेटी ने कहा कमेंट्री भी देते हैं, हाँ, हर मैच के साथ अपनी Commentary पैरेलल भी। कमेंट्री दो। पर नीरजा नहीं, ये चैलेंज होता है, आपको इसको बर्दाश्त करना पड़ता है, हम्म, समय के लिए रुकना पड़ता है। कभी कभी मैं आपको कहता हूँ कि सूरज आने के पहले रोशनी आती है, सूरज बाद में आता है। अच्छी बात होती है, बिल्कुल। रोशनी होती है पहले। ऐसा जब आप करते हो ना, हम्म, तब सूरज तो सामने है, रोशनी नहीं दिखाई देती। वाह। ये बड़ी ही जटिल समस्या है। हम्म, इसमें से आपको जाने की अगर ताकत है, मन में अगर उस विषय की शिद्दत है, तो ये प्रयास निश्चित करें। बिल्कुल। इस प्रयास के बाद मेरा मानना है कि अब ये प्रयास बहुत होंगे, हम्म, निश्चित ही बहुत होंगे, क्योंकि अब वो डर नहीं लगेगा। बिल्कुल। पर जब मैं खुद अपने लिए कुछ रोल मॉडल्स ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि ऐसा ही पागल एक इंसान मैं और ढूंढूं, हम्म, तो कम ढूंढने मिले मुझे। जी। तो इसमें ये तो चुनौतियां थी, आपने चैलेंजेस कहा, जी। पर इन सभी चैलेंजेस में हम्म, आपके परिवार का साथ, बिल्कुल, बहुत ज़रूरी। और इस सबसे ज़्यादा इसमें जो अफेक्ट होने वाला फर्स्ट पर्सन होता है, वो आपकी बीवी होती है। बिल्कुल। एक पूरी ही अलग चकाचौंध की जिंदगी जब आप कह देते हो कि अब मैं छोड़ रहा हूँ। हम्म, आप जानते हो नीरजा, इस लेडी ने मुझसे कहा कि आई विल बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट लेडी इन द वर्ल्ड द डे यू स्टॉप योर बिजनेस। क्या बात है। दैट इज हर वर्ड्स। वाह। इसकी वजह मैं बताता हूँ, एक छोटा सा, और जी। इसको, हमारी शादी होने के बाद मेरे एक ड्रॉअर में इसको एक फोल्डर मिला था। अच्छा। उसमें मैंने एक छोटी सी चिट्ठी पे काफी साल पहले लिख करके रखा था, डॉक्टर संजय रुनवाल। अच्छा। वाह। उस वक्त डॉक्टरेट की तो बात दूर रही, मैं मास्टर्स भी नहीं हुआ था। वो कागज जब इसके हाथ में आया, हम्म, तो इसने उसी रात मुझसे पूछा हम्म, कि भाई आप डॉक्टर हो? हम्म, मैंने कहा नहीं हूँ। फिर ये क्यों लिख रखा है? हम्म, मैंने कहा मैं बनना चाहता हूँ। वाह। जिस दिन मैंने उससे कहा कि मैं काम छोड़ रहा हूँ, ताली बजा करके उसने कहा अब तेरा सपना पूरा होगा। क्या बात है। जब आपके घर में ही ऐसा सपोर्ट हो, हम्म, मेरे दोनों बच्चे, जी। ये दोनों मेरे लिए, आप कहिए कि फक्र की एक बिल्कुल। सबसे बड़ी मेरे जी, लिए एक जी। ऐसी एक कहानी है। हम्म, अपने अपने क्षेत्र में इन दोनों बच्चों ने बहुत कुछ किया है। बच्चे अपने क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, पिता के दो अगर थोड़े लूज भी हो गए हैं, तो उन्होंने सहन कर लिया। मैं सही कहता हूँ, जी। इन्होंने मुझे बर्दाश्त किया है। वाह, क्या बात है। तो मुझे भी यही लगता है कि परिवार की बहुत बड़ी भूमिका होती है, और हैट्स ऑफ टू प्रतिभा जी, ज़ोरदार तालियां उनके लिए भी हो जानी चाहिए। और जो बात कही, तो उसके लिए ये कहना चाहती हूँ कि बड़े सलीके से बड़े एहतिमाम से काम लिया, दिया जला के अंधेरों से इंतकाम लिया, दिया जला के अंधेरों से इंतकाम लिया। और ये जज्बा, ये जुनून जिसमें होता है, वही डॉक्टर संजय रुनवाल बन सकता है। वरना तो हम अपनी अपनी ज़िंदगी में जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलते रहेंगे। संजय जी, बात करना चाहती हूँ आज की किताब के बारे में जिसका आज प्रकाशन हुआ है। तो हमारे दोनों माननीय वक्ताओं ने बहुत सारी बातें बता दी हैं ऑलरेडी, और बहुत अच्छी बातें उन्होंने बताई, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहती हूँ कि इस किताब की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? इस किताब की सही प्रेरणा नीरजा, आशा जी ने उसका जिक्र किया, शायद वो लोगों तक कितना उनके जहन में या मस्तिष्क में रहा ये मुझे नहीं पता। हिज होलीनेस द दलाई लामा,
जी। अब आप कहेंगे इस व्यक्ति का हिज होलीनेस द दलाई लामा से क्या लेना देना। इसकी एक छोटी सी स्टोरी है, मैं आपको सुना देता हूं। मैंने 2022 में श्वेता जी ये सोचा था कि जो मन में जो चीजें उभल रही हैं, जिन्होंने बहुत दिन से एक जगह बनाई है, इनको कहीं ना कहीं बाहर निकालो। एक माध्यम खोज रहा था मैं। तो मैंने एक ऐसा कुछ करने का सोचा कि हर रोज एक विचार लिखूं और विचार लिख करके उसको कहीं किताबों के पन्नों में न दफना दूं और उसको लोगों के सामने उजागर करूं। तो ये डिजिटल सोशल मीडिया का ज़माना है। इट्स अ डिजिटल एज एंड द बेस्ट वे टू रीच पीपल इज प्रॉब्ली थ्रू द सोशल मीडिया। तो मेरे ये जो विचार में लिखता था, इसको व्हाट्सएप के स्टेटस पे डाल देता था। व्हाट्सएप के स्टेटस पे अगर डालना हो तो व्हाट्सएप के मेटा ने एक मर्यादा डाल रखी है, 700 कैरेक्टर्स। इससे ज़्यादा में आप इस बात को नहीं रख सकते। तो आशा मैंने अपने सारे थॉट्स को कंडेंस करके उनको 700 कैरेक्टर्स में पिरो के 29 नवंबर 2022 से मैंने शुरुआत की। सोच ऐसी थी कि 5-10 लिखूंगा, मैं भी उब जाऊंगा, मेरे से पहले लोग उब जाएंगे। तो ये अपने आप खुद अपने आप को रुकाने वाली चीज है। हुआ बिल्कुल उल्टा। कुछ समय के बाद मैं रुका, पर सामने से आवाजें आई, कैसे रुक सकते हो आप? ये विचार तो हमारे तरफ से और आगे 10 ग्रुप्स में जाते हैं, बिल्कुल, और वहां से और कहीं जाते हैं। जब इसकी एक परीक्षा की गई, डिजिटल मीडिया में एक फॉर्मूला है कि ये कितने लोगों तक पहुंचता है, इसका आप एक अनुमान लगा सकते हैं। तो हमें आखिर में पता चला था 1 लाख से ज्यादा लोगों तक ये विचार जा रहे थे जी। तो मैं खुद को रोक नहीं सका, पर फिर भी इरादा ये नहीं था कि इतने सारे विचार लिखूं। कहीं 2023 के फरवरी या मार्च में हम लोग अरुणाचल प्रदेश गए थे, और अरुणाचल प्रदेश के करीबन 30 मोनेस्ट्रीज में हम लोग गए थे। दलाई लामा तिब्बतियन इन्फ्लुएंस हर मोनेस्ट्री में वहां पे है। तो मेरे हाथ में किताब आई, द डेली मोटिवेशंस, जो हिज होलीनेस द दलाई लामा ने लिखी थी। मैंने भी उसको ब्रीज थ्रू किया, और पहले ही पन्ने में पता चला कि उन्होंने ये 365 विचार लगातार 1 वर्ष हर एक दिन लिख करके उन्होंने ये किताब बनाई है। वाह, वाह कह दिया आपने। जिसका भेजा सटका हुआ हो वही कर सकता है। वो ये करेगा, क्योंकि अगर उसके सामने उसको ऐसी कोई चुनौती दिखे तो वो फितरत से उसको उठाएगा। बिल्कुल, मैं भी वही था। मैंने तुरंत मन ही मन में कहा, अगर हिज होलीनेस द दलाई लामा ये करते हैं मस्ती मस्ती में, मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं भी करूंगा। ऐसा करके 365 दिन, हर दिन 28 नवंबर 2023 तक मैंने हर रोज एक विचार लिखा है। क्या बात है, ये डेडिकेशन होना चाहिए वाकई। पर नीरजा, एक छोटी सी गुस्ताखी है इसमें। हाँ, मैं 28 नवंबर को 1 साल हो जाता, मैं रुका नहीं। 30 नवंबर को मेरे पिताजी की पुण्यतिथि है, नवंबर 30 को। मैंने कहा ये सारा उन्हीं को अर्पण करते हैं, उन्हीं के कदमों में इसको हम रखते हैं। तो उसको 30 नवंबर 2023 तक मैंने किया, और 365 की जगह 367 विचार मैंने उस वक्त लिखे थे। यस, तो ये इसके पीछे की कहानी है जी। पर अब जब किताब आई तब
आशा जी का वो थोड़ा सा फेवरेट विषय हो सकता है। मैं सोच रहा था कि 365, 367, 399, 400 क्या करूं, कितने विचारों की ये किताब बनाऊं। तो मुझे देखते देखते ये ख्याल आया कि ये इस बात की जानकारी भी मिली कि 401 ये संख्या बड़ी गजब की है। इसको एंजल नंबर कहते हैं। जी, एंजल बिल्कुल। नंबर। 4 की अपनी एक महत्वता है और 1 की अपनी एक की महत्वता है। अपनी। शून्य तो कहीं पे भी डालो, उसकी अपनी महत्वता है बिल्कुल, जी। ही, वो संख्या बढ़ाता है। 4 स्टैंड्स फॉर प्रैक्टिकलिटी, स्टेबिलिटी, and 1 stands for individuality, यस, and it stands for your dreams, your aspirations, your goals, your desire to probably fly high. या तो मैंने कहा यही तो ये किताब है। बिल्कुल। तो इसको हम 467 में न रोकते हुए 401 तक ले जाएंगे। इसीलिए दिस इज 401 थॉट्स। वंडरफुल, वंडरफुल। संजय जी, ये आपकी वैसे देखा जाए तो चौथी किताब है, लेकिन चौथी भी क्यों, छठी किताब है। आपने 2 अलग अलग विषयों पर लिखा है, एक है बिजनेस स्ट्रैटेजी और दूसरा ह्यूमनोलॉजी। आपकी अवार्ड विनिंग जो किताब है SBOP 55 से 60 इस विशिष्ट आयु वर्ग के लिए, तो उसके बारे में कुछ बताइए। हालांकि काफ़ी लोगों के पास वो किताब है, काफ़ी लोगों ने पढ़ी भी होगी, लेकिन फिर भी जिन्होंने अब तक वो किताब नहीं ली है या इसके बारे में सोचा भी नहीं है, उनके लिए आप कुछ बताएं। इस देश के एक बहुत मशहूर हास्य व्यंग्य के कवि सुरेंद्र शर्मा होकर के जी। गए हैं, आज भी हैं, होकर के बिल्कुल गए हैं, हैं। सॉरी मेरे शब्द वापस लेता हूँ, 4 लाइना होकर के नहीं गए हैं, अभी भी हैं, पर अब वो हास्य व्यंग्य नहीं करते, नहीं करते। वो बहुत ही सीरियस किस्म की जी, अब कविताएं जी। करते हैं। पर सुरेंद्र शर्मा जी की कुछ लाइनों से मैं हमेशा प्रभावित रहा, और उसमें से सबसे प्रभावित होने वाली लाइन थी, 55 में तो बचपन होता है, 55 में तो बचपन होता है, 60 में कहीं जवानी खिलती है, 70 में वो फूलती फलती है। तो 55-60 में क्या है? हाँ 55-60 में तो बचपन है। बिल्कुल। तो मैं लोगों से वही कह रहा हूं कि 55-60 में खुद को इस तरह से अपने आप को उजागर करिए। हमें केवल अब अपने लिए नहीं जीना है। वाह। SBOP लिविंग इज सिस्टमेटिक ब्लो आउट प्लान। SBOP का जिक्र तो कई बार आया। सिस्टमेटिक ब्लो आउट प्लान एक कोविड में जन्मा हुआ एक सोच है। जी कोविड में आप जानती हैं नीरजा, दुनिया रुक गई थी, बिल्कुल। सड़कों पे प्राणी ज्यादा दिखते थे, मनुष्य कम दिखते मनुष्य थे। कम। तो एक बहुत अजीब सा दौर था। जी इस दौर में एक दिन मैं अपने घर के बाहर शाम के समय बाहर बैठा था, और एक दिमाग में एक ख्याल आ रहा था कि मान लो ये कोविड से दुनिया ऐसी ही रुक गई और कहीं मेरी भी अगर कहीं बत्ती यहीं गुल हो गई, विचार आया, जी तो मैं कहाँ हूँ इस वक्त। तो मैंने एक T20 की क्रिकेट मैच की तरफ अपनी लाइफ को जोड़ करके देखा कि 80 साल की उम्र और 20 ओवर की अगर मैच को इसको जी एक बराबर एक नज़र से अगर तोलो, तो मैं तो 62 में था। मतलब 16वीं ओवर तो शुरू हो चुकी थी, उसकी भी 3-4 गेंदें पूरी हो चुकी थी, बिल्कुल। और अगर 20 ओवर की मैच में कहीं बैड लाइट हो जाए, कहीं बारिश हो जाए और कहीं ड्यू फैक्टर भी आ जाए, तो अपना तो खेल 17 रुक ही साढ़े जाएगा। 17 ओवर में ही जी। समेटने वाला है। तो अगर 17.5 ओवर के खेल में अगर मैं 16.5 तो पूरे कर चुका हूं, तो 1.5 ओवर का खेल बाकी है। तब मेरे ध्यान में आया कि जिंदगी को जीने का अब अपना पूरा तरीका बदलना होगा। वाह। Systematic blowout plan took birth at that time in COVID, when the world had stopped, and I realized कि केवल
आपके पास आपने जो संपत्ति संग्रह कर रखी है उसको उड़ाना, ये बहुत उसका एक छोटा सा अर्थ लोग उसको उस अर्थ से लेते हैं जी। पर वेल्थ, विजडम एंड वार्मथ, मैं 3 W's की बात हमेशा करता हूँ। आपको आपके अपने जीवन में इन सभी चीज़ों को लुटाना है। जी। ब्लोआउट का मतलब, मेरे एक बहुत ही अच्छे, उम्र में बहुत बड़े हैं तो मित्र नहीं कह सकते, गुरु समान है, सलाहकार हैं, नरेंद्र जी बख्शी। इन्होंने SBOP लिविंग में झांक करके पढ़ करके 200 कॉपियां अमेरिका में बांटी हैं। ओह। If I remember right, 200 copies of SBOP living were distributed in the United States, in the entire Bay Area of California. Oh. And to what kind of people? People who had set up listed companies listed on NASDAQ, Dow Jones, S&P, ऐसी कंपनियों के जो CEOs थे, डायरेक्टर्स थे, इन तक ये किताब गई। और नीरजा, आप जानते हैं, इट वॉज नॉट अबाउट रिटायर, रिफायर और रिवायर, बट दिस बुक वॉज ट्रीटेड एज अ बुक ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। क्या बात है, वाह वाह। इसको एक पूरा नया आयाम दे दिया नरेंद्र बख्शी जी ने। और उसके बाद एक रिक्वेस्ट उन्हीं की तरफ से आई कि टाई के 16,000 मेंबर्स हैं, SBOP लिविंग को हम डिजिटलाइज करके पूरे के पूरे 16,000 लोगों में इसको क्यों ना बांट दें। क्या बात है, एज अ ट्रीटाइज ऑन सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। वाह। हर किसी ने देखते वक्त इस किताब को अलग नज़र से देखा है, उनका नज़रिया अलग था। क्या बात Yes. है, वाह, बहुत खूब। तो मुझे लगता है कि ये किताब अगर किसी के पास नहीं है तो ज़रूर खरीदिएगा। और थॉटफुल रिफ्लेक्शंस जिसका आज प्रकाशन हुआ है, तो जैसा आशा जी ने कहा था कि इसमें बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, और कुछ जब मैंने भी वो किताब पढ़ी तो मुझे भी कुछ चीज़ें समझ में आई कि ये तो मेरी ज़िंदगी से जुड़ी हुई बातें हैं। मैं जिस प्रोफेशन में काम करती हूँ वहाँ पर मुझे जो आपका एक थॉट उसमें बहुत महत्वपूर्ण लगा या बहुत उपयोगी लगा मेरे लिए, वो है पेज 281 पर। तो आप लोग जब किताब खरीदेंगे तो पेज 281 ज़रूर देखिएगा और मेरी याद कीजिएगा। विच सेज फाइंडिंग फुलफिलमेंट इन द प्रेजेंट। हमारा जो फील्ड है उसमें अक्सर ऐसा होता है कि कुछ सालों के बाद शायद हम लाइमलाइट से अलग हो जाएं। आज मैं आपके सामने स्टेज पर हूँ, शायद हो सकता है कि 2 साल बाद जब मेरी उम्र और बढ़ जाए तो कोई मुझे ना बुलाए। उस वक्त क्या मैं आज की याद करते हुए अपने आप पर अफसोस करती रहूं? तो मुझे ये समझ में आया कि नहीं, जो बीत गया है उसे बीत जाने दो, जो आज आपके पास है उसकी कदर करो। तो ऐसे बहुत से थॉट्स उसमें हैं जो हम अपने आप से रिलेट कर सकते हैं। तो ऐसा कोई ख़ास थॉट आपको लगता है उस पूरी किताब में, यानी हैं तो सारे आपके ही, लेकिन फिर भी आपको कुछ ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़रूरी या मुझे बहुत पसंद है? नीरजा, ऐसे एक पिता से सवाल कर दिया है। सारी ही उसी की औलादें हैं, उसी की अपनी संतान है, किसको कम कहें किसको ज़्यादा कहें। पर अच्छा है, पिक्चर शुरू हो रही है अब। बिल्कुल। अभी तक हम लोग शायद ट्रेलर में ही घूम रहे थे जी। थोड़ी सी इसकी भूमिका मैं आपको बता दूं। थॉटफुल रिफ्लेक्शंस जब आप कहते हैं, आपको बहुत सोच समझ कर ये टाइटल देना है कि थॉटफुल एंड रिफ्लेक्शंस। इसमें चिंतन भी है, मंथन भी है। तो अब सवाल यहां आता है कि ये चिंतन मंथन आप क्यों कर रहे थे? मैं आपको इस किताब की सही वजह बताता हूं। जी। हर इंसान की अपनी कुछ सफलताएं होती हैं, कुछ नाकामियां होती हैं। कहीं वो सही करता है, कहीं वो इतना सही नहीं करता है। जी। कहीं कहीं उसकी उलझनें होती हैं, परेशानियां होती हैं, उसके जवाब कुछ उसको मिल चुके होते हैं,
कुछ कुछ पे उसका चिंतन मंथन वो करते रहता है। नीरजा, एक मेरे विषय में एक अच्छी बात जो हुई वो ऐसी थी कि डॉक्टरेट करते वक्त मैं एक रिसर्चर बन गया था। और रिसर्च क्या होता है, रिसर्च कैसे होता है, इसकी पढ़ाई करे बगैर आप डॉक्टरेट नहीं करते। तो मुझे इस बात की समझ आ गई थी कि जब तक आप चीज़ें वैलिडेट नहीं करते हो तब तक वो सच्चाई नहीं होती। आई कहते हो आई अज्यूम, आप कहते हो आई प्रिज्यूम, आई थिंक सो, दैट डजंट होल्ड वाटर एट ऑल। तो कहीं ना कहीं मैं भी इन चीज़ों की सोच कर रहा था कि इसको एक बहुत, जैसे आप कहिए, एक ठाम रूप से आप लोगों के सामने अगर प्रस्तुत करना चाहते हो तो आप कैसे करेंगे। तो एक समय का इशारा आ रहा है, आप टाइम देखिए। शायद मेरे ख्याल से हाँ जी, वी विल फिनिश इट इन द नेक्स्ट श्योर 5 to 7 minutes। बिल्कुल। तो इसमें एक कोशिश मैंने ये की कि मेरी जो चुनौतियां हैं इसमें मैं खुद चिंतन करूं। जी। रिसर्च टॉट मी मंथन और इंडियन वेदास ऑल्सो टॉट मी मंथन। मतलब केवल पाश्चात्य जगत से आया हुआ रिसर्च नहीं, बल्कि अपने देश का वेद संस्कृति, जी। इन्होंने मुझे सिखाया कि मंथन क्या होता है। तो चिंतन मंथन करके आपके अपने समस्याओं का, उलझनों का जी। आप समाधान कैसे ढूंढोगे। हर रोज की जिंदगी में आपके सामने नई चुनौतियां आती है। बिल्कुल। सवाल आप खुद से, आशा जी ने कहा यू विल नॉट बॉदर योर रिलेटिव्स, यू बेटर फाइंड योर ओन आंसर्स फॉर दैट। Yes. तो चिंतन मंथन ये खुद से खुद की अपनी सोच बनाने का बिल्कुल। और एक जवाब ढूंढने का एक जरिया था। मेरी असफलताएं, मेरी कमियां मैंने इस किताब में लिखी हैं। केवल ये नहीं लिखा है कि ये किया या वो किया। मेरी नाकामियां, असफलताएं, मेरी चुनौतियां लिख करके मैंने आपसे कहा है कि ऐसा मैंने सोचा है, आप भी सोचिए। जी। मैंने उनसे इस बात का निवेदन किया है कि केवल मेरी बात को न मानिए, लेट अस इंडल्ज इनटू अ डायलॉग, Yes. पर एक सोच तो दूं। तो ये किताब एक प्रयास है, जी। ये फुल स्टॉप नहीं है, बिल्कुल। पर एक अच्छा कॉमा है जहां लोगों को अपनी सोच, अपने विचार, खुद से खुद का संभाषण करने का जी। एक तरीका है, एक जरिया है, थॉटफुल रिफ्लेक्शंस। वाह, बहुत खूब। और हम इस छोटी सी बातचीत के समापन की ओर चलते हैं। ये सारी किताबें संजय रुनवाल फाउंडेशन के माध्यम से प्रकाशित हुई हैं और फाउंडेशन के बारे में हमारे वक्ताओं ने काफ़ी कुछ बातें बता दी हैं। तो आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? फाउंडेशन के बारे में काला जी ने बहुत जी, कुछ कह दिया। जी। तो डूइंग गुड इन लाइफ ये मेरा अपना मकसद रहा है। जी। SBOP लिविंग के जो 3 महत्वपूर्ण उसके जो आप स्तंभ कहिए, वो है फॉर योर सेल्फ, फॉर योर फ्यूचर एंड डूइंग गुड इन लाइफ। जी। और डूइंग गुड इन लाइफ के एकमेव मकसद से जन्मा है संजय रुनवाल फाउंडेशन। वाह, वो बहुत क्या खूब। करता है ये तो काला जी ने बता दिया है। बिल्कुल। पर किताबें क्यों छापी, ये अच्छा सवाल है आपका। इसमें ऐसा है, मजाकी तौर पे कह रहा हूँ, कोई इसको बहुत सीरियसली मत लीजिए। 64 के आयु में जब कोई बैठता है और उससे कहते हैं जो प्रकाशक हैं कि साहब दीजिए, हमारे पास पन्ने दीजिए, 1-1.5 साल में इनको हम उल्टेंगे, देखेंगे ये छापने लायक है नहीं है। मैंने कहा इसके बीच मैं ही गुड़क जाऊं तो हंसी मजाक में कहा है, पर इसी बीच में मैं गुड़क जाऊं तो मैंने कहा ये इतना समय मेरे पास नहीं है और मैं ये समय अब बर्बाद नहीं करूंगा। आप विश्वास नहीं करेंगी, किताब छापना आसान भी नहीं है
बिल्कुल नहीं है। मुश्किल बहुत है, हम्म, चुनौतियां बहुत है, पर हमने वो सारी स्वीकारी। हम्म, आज मैं यहाँ किशोर कुमार गांगुली के हैसियत से बैठा हूँ। हम्म, गायक वही है, फिल्म के प्रोड्यूसर वही है, एक्टर वही है, जी, कथा उन्हीं ने लिखी है, हम्म, और रिलीज और प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन भी वही कर रहे हैं। क्या बात है। अब क्या जवाब दूं इससे ज्यादा? नहीं, कुछ नहीं, इसका मतलब ये है कि हर फन मौला हैं आप। एक शब्द है जिसे कहा जाता है हर फन मौला। मौला यानी जो अपनी मस्ती में होता है, फन यानी सारी आर्ट, जितनी सारी चीज़ें हैं, और हर यानी हर एक। तो वैसे हैं आप संजय जी, ऐसा मैं आपके लिए कहना चाहती हूँ। और भविष्य की योजनाओं के बारे में बिल्कुल 2 लाइंस में बता दें। और मतलब मुझे तो ये लगता है कि गीतकार बनेंगे शायद ये, या फिर शायद कभी किसी दिन मेरे साथ स्टेज पर बात करते हुए नज़र आएंगे, या और भी पता नहीं क्या क्या। तो ये जो धुन है ये इनको कहाँ ले जाएगी हम नहीं बता सकते। तो आपके दिमाग में क्या है? साफ है, 55 में बचपन है, 60 में जवानी है, 70 में वो फूलेगी फलेगी। दिल में ख्वाहिशें बहुत हैं, करना बहुत है। अभी तो शुरुआत है, अभी तो शुरुआत है। बिल्कुल। पर सबसे ज्यादा अगर मैं कुछ करना चाहूंगा, समाज के लिए कुछ देना चाहूंगा एक, और अपने लिए कविता लिखना चाहूंगा। वाह, क्या बात है। तो चलिए हम उम्मीद करें कि जल्दी ही इनकी एक बहुत सुंदर कविताओं की पुस्तक भी आप सभी की साक्षी में प्रकाशित हो, और शुभकामनाएं देते हैं आपको कि आप बढ़िया कविताएं लिखिए, और निश्चित रूप से उसमें भी जीवन की कई बातें होंगी जो हमारे लिए एक गाइड का काम करेंगी। तो संजय जी, हालांकि बातें बहुत सी हैं जो आपसे करनी हैं, क्योंकि ये बहुत लंबा सफ़र है, लेकिन फ़िलहाल आज के लिए मुझे लगता है कि हम इसे यहीं पर विराम दें, और उम्मीद यही करेंगे कि एक के बाद एक आपकी किताबें आती रहें, हम सभी इन किताबों के ज़रिए आप तक पहुंचते रहें, और ये किताबें हम तक पहुंचती रहें, हमारे अपनों तक पहुँचे, हमारे दोस्तों तक पहुँचे, हमारे घर में हमेशा के लिए जगह बना लें अपने लिए। एक छोटी सी बात जी। पिछले साल मैं नाना बना हूँ, तो अब जीवन में एक चीज है जी, कि ज्यादा से ज्यादा समय उस नन्ही सी जी, नव्या के साथ बिताए जाए। बिल्कुल। तो मुझे ये लगता है कि उसके साथ समय बिताते हुए पहली कविता आप नव्या के लिए ही लिख दें, तो बहुत मज़ा आएगा। तो फिलहाल इस छोटी सी बातचीत को हम यहाँ पर विराम देते हैं, और एक बार फिर मैं अपनी जगह ले लेती हूँ, क्योंकि थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज़ बाकी हैं। जी ज़रूर। नहीं, आपको रुकना है यहीं पर। Plant head of Trinity Academy, our printers, world-class printing of the book, thoughtful reflections and all other publications of the संजय रुनवाल फाउंडेशन, जिनके थ्रू हुआ है वो प्रवीण वाघ, उन्हें मैं मंच पर बुलाना चाहती हूँ और उनका सम्मान करने का अनुरोध करती हूँ डॉक्टर संजय रुनवाल से। बहुत खूबसूरत तरीके से ये किताबें हमारे सामने आई हैं, उसमें इनका बहुत बड़ा हाथ है। अगर प्रवीण जी जैसे प्रिंटर्स आपके साथ हों तो पेंगुइन, जैको, सृष्टि, कॉलिन हार्पर, हैचेट, वाव, ये किताबें यहीं छपती हैं। और इसके बाद बुलाना चाहती हूँ शुभंकर सोनमणि को फॉर ऑल हिज क्रिएटिव डिज़ाइंस एंड कॉन्स्टेंट सपोर्ट टू ऑल दीज बुक्स।
शुभंकर सोनवणी। और एक खास बात जाते जाते संजय जी की, यस, थैंक यू सो मच शुभंकर। ख़ास बात संजय जी की जाते जाते ये भी बताना चाहूँगी कि हर उम्र के लोगों से जो वास्ता, उनका राब्ता जो बनता है वो बहुत ख़ास होता है। चाहे किसी की उम्र कितनी भी हो, संजय जी उसे अपना दोस्त बना लेते हैं, ये एक खासियत है उनकी। और संजय जी, अब आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप सामने स्थान ग्रहण कर सकते हैं। कार्यक्रम के समापन की ओर हम बढ़ रहे हैं और मैं मंच पर बुलाना चाहती हूँ प्रतिभा रुणवाल जी को आभार प्रदर्शन के लिए। यूँ तो ये आभार प्रदर्शन ऐसा लगता है कि एक औपचारिकता है, लेकिन ये औपचारिकता नहीं है, ये दिल से निकली हुई आवाज़ है आप सभी के लिए। तो आइए तालियों के साथ हम स्वागत करते हैं प्रतिभा रुणवाल का। हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस डॉक्टर संजय रुणवाल। आज सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहिए वो इंद्र भगवान का, जो हमारे पे उसने आशीर्वाद तो दिया लेकिन बरसाया नहीं। शुभ संध्या देवियों और सज्जनों। संजय रुणवाल फाउंडेशन की ओर से धन्यवाद प्रस्तावत प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। सबसे पहले मैं हमारे सम्मानित अतिथि सेवानिवृत्त विंग कमांडर विद्याकांत जी काला और हमारी प्रमुख अतिथि अत्यंत प्रतिष्ठित आशा सेठ को इस समारोह में उपस्थित होने के लिए अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। साथ ही मैं उनके परिवार की भी आभारी हूँ जो इस पुस्तक लॉन्च में हमारे समारोह में साथ जुड़े। मैं हमारे दोनों अतिथियों का विशेष रूप से आभारी हूँ कि उन्होंने अभी लॉन्च हुई पुस्तक थॉटफुल रिफ्लेक्शंस के बारे में अपने मूल्यवान विचार हमारे सामने रखे, जिसके लेखक मेरे पति डॉक्टर संजय रुणवाल है। मैं सभी अतिथियों का भी हृदय से आभारी हूँ जो इतनी बड़ी संख्या में बारिश की संभावना के बावजूद यहाँ उपस्थित हुए और इस समारोह की गरिमा को भव्यता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। मैं इन सभी बाहरी आए हुए सभी शहरों से आए हुए अतिथियों का भी आभारी हूँ, हमारे निमंत्रण को स्वीकार करके इस समारोह को सुशोभित किया। मैं विशेष रूप से अपने पिताजी जो 96 इयर्स के हैं उनकी बहुत आभारी हूँ, जो यहाँ तक का सफ़र तय करके इस समारोह में उपस्थित हुए और अपने दामाद को आशीर्वाद दिया। देवियों और सज्जनों, आपकी उपस्थिति ने इस समारोह को अविस्मरणीय बना दिया है और मैं व्यक्तिगत रूप से आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। मैं उन सभी अतिथियों की भी आभारी हूँ जिन्होंने YouTube लाइव के माध्यम से इस समारोह को देखा और हमारी खुशी में शामिल हुए। मेरा धन्यवाद प्रस्ताव तब तक अधूरा रहेगा जब तक मैं इस शानदार प्रोग्राम की मास्टर ऑफ सेरेमनीज श्रीमती नीरजा अप्टे की भूमिका को स्वीकार न करूं। नीरजा, बस आप अद्भुत। मैं शुभ सोनावने की हृदय से आभारी हूँ जिन्होंने अपने रचनात्मक योगदान दिए और राहुल देव जो हमारे मित्र है और जिन्होंने आज फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और YouTube लाइव स्ट्रीमिंग का कार्य किया। मैं विशेष रूप से इस कार्यक्रम को, इस समारोह को लाइवली बनाने के लिए
जिस जिस वक्त जो जो लाइवली म्यूज़िक चाहिए था वो दिया, वो हमारी फ्रेंड नीना पांगारकर, इसकी भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज मैं योगेंद्र कुंठे जी की बहुत आभारी हूँ जो इस ऑडिटोरियम के मुख्य प्रशासक हैं, जिन्होंने अपना पूरा सहयोग और समर्थन दिया। मैं तुषार कुलकर्णी की भी आभारी हूँ जो आज शाम के खाने के लिए जिम्मेदार है। निश्चित रूप से स्वादिष्ट भोजन की प्रतीक्षा में मैं सभी टीम सदस्यों का भी आभारी हूँ जिन्होंने इस शानदार कार्यक्रम की सफलता में योगदान दिया। मुझे खेद है कि मैं सभी का नाम नहीं ले सकती, लेकिन निश्चित रूप से आप सभी ने बहुत अच्छा काम किया। इसके पहले कि मैं अपनी बात समाप्त करूं, मैं सभी सम्मानित अतिथियों से अनुरोध करती हूं कि वे हमारे साथ ग्राउंड फ्लोर पर डिनर में शामिल हो और निश्चित रूप से थॉटफुल रिफ्लेक्शन की अपनी प्रति खरीदना और उसे लेखक द्वारा हस्ताक्षरित करवाना न भूलें। एक बार फिर आप सभी को धन्यवाद और शुभ संध्या। थैंक यू सो मच। तो चलिए, इंतज़ार किस बात का है, तुरंत यहाँ से फर्स्ट फ्लोर जाना है, हमको नीचे जाना है, जहाँ पर स्वादिष्ट भोजन आप सभी का इंतज़ार कर रहा है और किताबें वो भी आपका इंतज़ार कर रही हैं। और जी हाँ, ये जो संगीत आप सुन रहे हैं, ये गाना आप सुन रहे हैं, ये है संजय रुनवाल जी द्वारा लिखित गाना और जिसे उन्होंने बहुत ही छोटे से समय में लिखा है और संगीत दिया है। तो थोड़ी सी शांति के साथ इस गीत को हम सुनते चले, क्योंकि है ये सपनों की ऊंची उड़ान। धन्यवाद। किसी वजह से किसी डगर पर नहीं रुकेंगे आज, बाधाएं कुछ भी आए पर नहीं झुकेंगे आज। छूना है आसमान, भरनी है नई जहां को जोड़ना है, जोड़ने हैं सबके दिल। आओ देखे ख्वाब सुहाना, नए अमन का नया सवेरा। होंगे हम जब साथ साथ, होगी हर मुश्किल आसान। निकल पड़े हैं अब न रुकेंगे, आंधी आए या तूफान। छूना है आसमान, भरनी है नई उड़ान। नई आशाएं, नई दिशाएं हमें बुलाए आज। छूना है आसमान।